आज के इस सेशन के चेयर प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, इस 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन की चीफ गेस्ट प्रोफेसर शशि कला वंजारी जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर नीपा, keynote speaker for the conference, Professor Kumar Suresh, Head of DES, Professor Kaushal Kishore, Professor Harjeet Kaur Bhatia, Professor Sara Begum, Professor Ashrad Ikram, ऑडियंस में बैठे रिस्पेक्टेड कॉलीग्स, प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ जी, Professor Rastogi, Professor Sarika Sharma, Professor Kartal Singh, faculty members of Jamia Millia Islamia, NIPA, scholars and students from Jamia, NIPA, and I can see few faces from my alma mater, Central Institute of Education, University of Delhi. Welcome you all to this interesting 2 days international conference with the theme Foregrounding Teacher Education in the Light of Policy Perspectives. When I was going through the title of this conference, I was wondering what made them keep foregrounding as a prefix of teacher education. And I appreciate the theme for this conference because Policy 2020 has given this important mandate to teacher education to be foregrounded and not on the background of the education system. So this important conference will help us all understand the dynamics, undercurrents, and the changes which are coming in the domain of teacher education at national level. So I have tried to jot down my ideas in the form of a brief presentation, and starting with NEP 2020. NEP 2020 is the background for this theme, which is foregrounding teacher education for the 21st century in India. NEP has proposed that teacher must be at the center of fundamental reforms in education system. अभी कुमार सुरेश जी जब अपनी बात कह रहे थे और 8 पॉइंट्स के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से की एड्रेस को अपने ऑर्गेनाइज किया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पेडागोजी एंड ग्लोबल ट्रेंड्स इन टीचर एजुकेशन वर कोर ऑफ हिज प्रेजेंटेशन देयर. आई अप्रिशिएट हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट टीचर एजुकेशन. पॉलिसी का रेफरेंस उन्होंने काफी बार दिया और उसी को मैं सम करते हुए 3 पॉइंट्स के साथ I would like to highlight my understanding about teacher education. Para 15.1 speaks teacher education is vital in creating a pool of stakeholders, school teachers that will shape next generation. We are in 21st century and this policy is first policy of 21st century in the context of school education and in education generally. Policy proposes that teacher education is going to be the backbone of entire education system. अगर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आएंगे, टीचर एजुकेशन में चेंजेस आएंगे, टीचर एजुकेशन एप्रोप्रिएट होगा, टीचर एजुकेशन 2 तरह से सपोर्ट करेगा इंडियन इथॉस, इंडियन नॉलेज सिस्टम एज वेल एज challenges of 21st century, whether it is related to artificial intelligence or it is related to big data sciences. Policy has proposed under paragraph 15.1 that teachers truly shape the future of our children and therefore the future of our nation. अगर हम बात करना चाहते हैं by the year 2047 we want to be a developed nation, तो developed nation का रास्ता रोड मैप पॉलिसी ने हमें दिया है और पॉलिसी ने कहा कि अगर कंट्री का फ्यूचर डिफाइन करना है तो टीचर्स आर द ट्रू इंस्ट्रूमेंट इनटू दैट. Policy has also proposed that motivation and empowerment of teachers is required. I repeat, motivation and empowerment of teachers is required. My understanding as a teacher educator for last 28 years suggests me
that empowerment and motivation are two key points, key areas where we all need to work if we want to have change in the education system. And this change is required to ensure the best possible future of our children and of our nation. Next, please. हम सब ने ये पिक्चर भी देखी है और ये कोट भी सुना है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. This verse highlights the Guru's divine stature, equating the teacher with the supreme cosmic forces responsible for creation, preservation and transformation. मैंने इसीलिए कहा कि टीचर एजुकेशन is important for creation, preservation and transformation of Indian society, ultimately leading to the disciples towards enlightenment and towards brighter future for the country. If we want to see the history and evolution of teacher education in our country, we need to go back up to 1948-49 when University Education Commission led by the first president S. Radhakrishnan ji, जिन्होंने टीचर एजुकेशन को हायर एजुकेशन के साथ इक्वेट करने का प्रपोज किया. Their commission has proposed that subject knowledge, pedagogy and continuous professional development of teachers is very, very important. मैं ये पॉइंट्स इसलिए भी आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि हमारी जो पॉलिसीज बनी, जो प्लानिंग हुई, उसमें ये बजिंग वर्ड्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागॉजी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये मोर देन 75 ईयर्स से बार बार हमें रिमाइंड करवाते हैं कि टीचर एजुकेशन को सक्सीड होना है नेशन में, टीचर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन बनना है. तो दीज आर द की टर्म्स. वी नीड टू बी हैविंग क्वालिटी सब्जेक्ट नॉलेज. We need to promote pedagogy as per the need of the situation, as per the context of the situation, as well as we need to develop teachers who are not only school teachers but professionals and continuously growing in their academic domain and social domain. 1952-53 का Secondary School Education Commission led by Swami Mudaliar recommended improving teacher education program to make them more scientific and effective. So again, these two words, scientific and effective, is there since 1952. 1964, the major commission on education, Kothari Commission popularly known as, brought its recommendations in the year 1966. एजुकेशन की दुनिया के हम सब लोग समझते हैं कि कोठारी कमीशन इज अ होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसका मैंडेट स्कूल एजुकेशन नहीं था, हायर एजुकेशन नहीं था, टेक्निकल एजुकेशन नहीं था, वुमेन एजुकेशन नहीं था, बल्कि ये सभी था. पहला एजुकेशन कमीशन था विच वाज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिव्यू एंड टू रिकमेंड improvement in Indian education system. So Indian education system which include all the domains which I have just mentioned. इसी कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे जब 1968 में इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी आई which has recognized the importance of teachers quality and recommended rigorous pre-service and in-service teacher education. तो ये जो चार कमीशंस पॉलिसी तक लेके आए हमें, तीन कमीशंस, तीनों ने क्वालिटी, रिगरस, प्री सर्विस, इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात की. एंड देन केम 86 पॉलिसी विद अ रिवाइज्ड वर्जन इन 1992, recommended the establishment of National Council for Teacher Education NCTE as a statutory body to regulate teacher education. इससे पहले टीचर एजुकेशन के रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंट्री में नहीं थे. 1992 में ये प्रपोजल आया, 93 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना और 95 में एनसीटी एग्जिस्टेंस में आया, which has introduced, policy has also introduced the concept of diets for providing in-service and pre-service teacher education. NCF 2005 proposed competency-based teacher education and National Knowledge Commission also proposed multidisciplinary approaches for teacher education.
NCFTE, National Curriculum Framework for Teacher Education in the year 2009. To my understanding, this was first curriculum framework for teacher education in the country, जिसके आर्किटेक्ट प्रोफेसर अतर सिद्दीकी इसी जामिया मिलिया इस्लामिया से थे और उन दिनों एनसीटी के चेयरपर्सन थे. This commission has defined teachers' competencies, ethics, and responsibilities. It has also proposed 2-year B.Ed program instead of 1 year. It has advocated multidisciplinary integration in teacher training and emphasized the importance of continuous professional development. Then came Justice Verma Commission, which proposed enhancing standards for B.Ed and M.Ed program, strengthening NCT's regulatory mechanism. Here it is important to understand that Justice Verma's commission काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है या है कि जस्टिस वर्मा कमीशन ने प्रपोज किया कि बीएड और एमएड 2 साल के होने चाहिए. नो, अगर आप जस्टिस वर्मा कमीशन रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कमीशन हैज प्रपोज्ड टू एनहांस स्टैंडर्ड्स फॉर बीएड एंड एमएड. एनहांस करने का एक रास्ता ड्यूरेशन बढ़ाना था इंटर्नशिप का, दूसरा रास्ता क्वालिटी पेपर्स, अपग्रेडेड कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पेडागोजीज प्रपोज करना था. That was not the sole way of improving teacher education just by enhancing duration of teacher education programs. In 1920 policy came और policy ने teacher education को transforming teacher education का रास्ता खोला by proposing a 4-year ITEP program which has been proposed to become a premier program of teacher education, ensuring multidisciplinary learning and pedagogy expertise. 4 साल का ITEP, अभी कुमार सुरेश जी जब बता रहे थे तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन की बात कोठारी कमीशन ने भी कहा और 1962 से कंट्री में 4 साल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बहुत सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं. But policy has proposed an exclusive program which is proposed as ITEP, Integrated Teacher Education Program. अगर आपसे पूछा जाए, अभी सारा मैडम कह रही थी कि हमने ITEP अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने कहा कि यहाँ मैं एनसीटी चेयरपर्सन के नाते कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा. बट एज एन एकेडमिशियन जामिया मिलिया इस्लामिया का अच्छा इनिशिएटिव है कि फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है. माई कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट. Integrated teacher education. We all are people of education, whether experts or scholars or students. What does integrated means? The pehla term of this program, integrated, integration of multiple domains of knowledge. Integration of content, pedagogy, Indian ethos, Indian knowledge system, artificial intelligence and Indian values. इन सब का इंटीग्रेशन करके एक ऐसा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विच स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट आफ्टर क्लास 12 एज अ चॉइस, एज अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ देम. और ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ कंटेंट में प्रिपेयर करेगा बल्कि पेडागोजी में भी इक्विप करेगा. प्रोग्राम इज अ डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम. डुअल मेजर पहला प्रोग्राम है जो डुअल मेजर प्रपोज करता है. दिस इज नॉट बीए प्लस बीएड, दिस इज नॉट बीएससी प्लस बीएड, दिस इज नॉट बीकॉम प्लस बीएड. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ pedagogies, content, as well as history of the content, evolution of the content and evaluation challenges of the content. इसीलिए अगर आप में से जिन लोगों ने ITEP का करिकुलम स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपने पाया होगा कि disciplinary component as well as pedagogy component start from very first semester of the program, and these are gradually developing into 8 semesters of the program. प्रोग्राम पॉलिसी के हिसाब से बहुत सारे पैरामीटर्स को इंपॉर्टेंट देते हुए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन अलाउ करते हुए स्टूडेंट्स को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क और यूजीसी की सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए वेरी कॉशियसली केयरफुली डिजाइन हुआ है. As chairperson NCT, I am happy to share at this forum कि पिछले 2 साल में 64 इंस्टीट्यूशंस ने ITEP इन पायलट मोड चलाकर देखा
and this has established the success of this program क्योंकि जो students का feedback है that's very encouraging. Students are finding program very engaging, very meaningful, and they are saying we are not understanding the discipline but the challenges of discipline. We are not reading a political science but also the evolution of political science, challenges in political science, research in political science, as well as evaluation in political science. तो ये जब integration true sense में होगा, only then learners will have multidisciplinary orientation and pedagogical expertise. Continuous learning is very important for all the teachers, and for this purpose, NCT has came out in the light of NEP 2020 again, two new domain for teacher education in service. One is NPST, National Professional Standards for Teachers. Till date, country में टीचर्स के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करने वाला कोई फोरम नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई गाइडिंग लाइट नहीं थी. हम टीचर्स के प्रोफेशनल होने की बात तो सोचते हैं, करते हैं, लेकिन उस दिशा में पहला स्टेप पॉलिसी ने उठाया, दूसरा स्टेप एनसीटी ने उठाया, और इसके लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट जो एनसीटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मार्च 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया और उसको लॉन्च किया. These days we are busy developing different tools to cater, to gauge, to measure the competencies of teachers, which will help them to grow from the proficient teacher to advanced teacher to expert teacher, जो 3 stages हैं. और टीचर्स के लिए क्योंकि एक ही क्वालिफिकेशन प्रपोज करती है पॉलिसी ITEP, प्राइमरी प्रीमियर प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन बाय द ईयर 2030, तो पॉलिसी ये भी कहना चाहती है, हालांकि मैं इस पे अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, पॉलिसी ये भी कहना चाहती है कि टीचर्स में जो डिफरेंसेस हैं उनके पे स्ट्रक्चर में, उनकी ग्रोथ में, उनको भी हमें खत्म करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, एंड एनसीटी इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन एज वेल. Another important program for continuous promotion and growth is NMM, National Mentoring Mission. Mentoring is very important. अगर मैं स्कूल गया तो मुझे इंटर्नशिप के लिए जामिया से एक रिस्पेक्टेड कोलीग एज अ सुपरवाइजर मेरे साथ है, टू हेल्प मी, गाइड मी ड्यूरिंग माय एक्सपेरिमेंट्स इन अ क्लासरूम सिचुएशन. But gradually, when I enter to a school situation, when I enter to the work of word, तो वहां मुझे हैंड होल्डिंग के लिए, सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था. नाउ पॉलिसी हैज प्रपोज टू ब्रिंग मेंटरिंग मिशन, जिसको एनसीटी ने पिछले साल, इसकी भी ब्लू बुक हमने लॉन्च की, और इसका ऐप बेस्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज ओपन एंड वी हैव इनवाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल द एक्सपर्ट्स हु हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years टू बिकम मेंटर्स. मेंटरिंग मॉडल बहुत सारी कंट्रीज में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है, बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, not only to the teacher education departments but also to the school education. I request, I appeal the experts in this house to please come forth and join mentoring mission through an app which is given on NCT website. Government has proposed to strengthen teacher education institutions. In this series, diets are being upgraded as diets of excellence. 4 साल के इस प्रोजेक्ट में पिछले साल 125 diets have been upgraded. This year, another 125 diets are being upgraded, and this is a mission of 4 years to make sure that diets are promoted and upgraded as institutions of excellence. Standalone teacher education institutions need to integrate into multidisciplinary higher education institutions. कोई भी मैंने बहुत अपने डिस्कशंस में, आसिफ साहब से मैं बात कर रहा था, अपने एजुकेशन पॉलिसी के डिस्कशंस में सर तो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पॉलिसी में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मुझ जैसे लोगों ने उस आइडियाज को कोशिश किया कि ठीक स्पिरिट में, ठीक आइडिया के साथ स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे. उसी में मैं कहता हूं कि अगर पॉलिसी ने कहा नो हार्ड सेपरेशंस, मींस कोई भी डिसिप्लिन की हायरार्की, डिसिप्लिन का डोमेन हार्ड सेपरेशंस के साथ नहीं एग्जिस्ट करेगा, इट विल हैव अ मल्टीडिसिप्लिनरी फ्लेवर इन ऑल द डोमेन्स. और इसी ने हायरार्की ऑफ डिसिप्लिन्स,
जो जाने अनजाने में बनी हुई थी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, और लास्ट में टेल में आता था वोकेशनल स्टडीज। वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन को प्रमोट करते हुए, इक्वलेंट टू एकेडमिक डिसिप्लिन का दर्जा देते हुए, NIOS ने 92 वोकेशनल कोर्सेज, 92 स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, और इन 92 कोर्सेज को हम एकेडमिक कोर्सेज के इक्वलेंट वैल्यू करते हैं। स्टूडेंट इज सपोज टू क्वालिफाई 5 सब्जेक्ट्स टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12। इसी साल से हमने वहां सजेशन दिया, out of those 5, one must be from vocational stream. So people should get the importance and understanding of the vocational stream. Digital integration is important. दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म वहां काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की दोबारा, क्योंकि एनसीटी का एक बहुत प्रीमियर प्रोग्राम है, 2 साल पहले लॉन्च हुआ, इस साल इसका एक्सपेंशन होने जा रहा है। तो ये 4 साल का प्रोग्राम जो क्लास 12 के बाद है, इसमें एनसेट NTA बेस्ड एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, मिनिमल डिग्री बाय द ईयर 2030, प्रीमियर प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन बनने जा रहा है। मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि पॉलिसी ने प्रपोज किया कि 1 ईयर BEd और 2 ईयर BEd वहीं एग्जिस्ट करेंगे जहां ITEP चलता होगा। तो अगर ITEP नहीं होगा तो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस BEd 1 ईयर या 2 ईयर नहीं चला पाएंगे आफ्टर 2030 एज ऑन डेट टुडे, पॉलिसी का सजेशन है। तो इसकी लाइट में ITEP की तरफ जामिया आगे बढ़ा है। माई एल्मा माटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने स्टार्ट किया है, मानू ने स्टार्ट किया है, 64 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IITs एंड NITs ने स्टार्ट किया है, एंड इस साल हम इसका एक्सपेंशन चाहते हैं। ये नया प्रोग्राम जो पॉलिसी ने नया करिकुलम स्ट्रक्चर प्रपोज किया स्कूल एजुकेशन के लिए, 5+3+3+4, इन चारों स्टेजेस के स्पेशलाइजेशंस प्रपोज करता है। A student can opt ITEP in foundational stage, preparatory stage, middle stage और secondary stage, up to his or her choice। और वो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस क्या लेगा, BA BEd, BCom BEd या BSc BEd, इनमें से कोई भी ऑप्शन लेगा। तो ITEP is not one program fitting all needs. No, this is a wrong statement. ITEP is a holistic program proposing 12 specializations, 3 BA BEd, BCom BEd, BSc BEd multiplied by 4 stages। तो ये 12 प्रोग्राम हैं जो एक ही टाइटल के साथ, एक ही कवर के साथ हमारे सामने आते हैं। डुअल मेजर है जिसमें स्टूडेंट विल हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी कि वो 64 क्रेडिट के एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़े और 94 क्रेडिट के एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़े और डुअल मेजर डिग्री एज पर UGC नॉर्म्स लेकर जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, व्हेन आई वाज डीन एजुकेशन इन CI, हमने जब ये प्रोग्राम अडॉप्ट किया NCT से, तो हमने उसे एनरिच किया। DU मस्ट गिव इट्स ओन टच टू द प्रोग्राम, और हमने उसको 176 क्रेडिट्स पे डेवलप किया है with a strong component of research in it. Research dissertation is a compulsory part of ITEP 4 year। और उसका फायदा ये होने जा रहा है कि ITEP का स्टूडेंट भी बाकी के 4 साल के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की तरह आफ्टर 4 year बैचलर डिग्री कैन स्ट्रेट गो फॉर PhD विदाउट डूइंग मास्टर डिग्री इन एजुकेशन। क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंट्रा डिसिप्लिनरी माइनर के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट में आएगा। NMM मैंने आपको बताया, नेक्स्ट प्लीज। NMM मेंटर और मेंटी को जोड़ने का एक ऐप हमने बनाया है जिसमें आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द कोलीग्स टू गो थ्रू इट एंड ज्वाइन इट। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, प्रवीण शिक्षक, उन्नत शिक्षक और कौशल शिक्षक की बात करते हैं, ना कि प्राइमरी टीचर, TGT और PGT। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी टाइम के साथ चेंज होगा पॉलिसी की लाइट में, पॉलिसी ने इसका भी रास्ता दिया है। और जो कौशल किशोर जी ने थीम सोचा फोर ग्राउंडिंग टीचर एजुकेशन, तो ये फोर ग्राउंडिंग टीचर एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पाथ इससे खुलता है। नाउ एन इंटरेस्टिंग शेयरिंग विद द हाउस, NCT हैज डेवलप्ड defined regulations 2025 where we are coming with 9 programs of teacher education in the first go. As
premier program of teacher education in the light of NEP 2020. अगर इन प्रोग्राम्स को देखें और इनके ऊपर भी हम चर्चा करें आने वाले 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में, तो foregrounding teacher education in the light of policy perspective. This is phase 1 where we have considered ITAP जो चल रहा था, अब उसको एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, 64 इंस्टीट्यूशंस के पायलट मोड से निकल के आगे जाएगा. ITAP आर्ट्स एजुकेशन पहले भी एक स्पेशलाइज प्रोग्राम था, ITAP को भी हमने उससे अलाइन किया है. फिजिकल एजुकेशन BPEd 2 साल का था, 12th के बाद बच्चों को ऑप्शन देने के लिए 4 साल का ITAP फिजिकल एजुकेशन. ITAP संस्कृत एजुकेशन बिगिनिंग इन द डोमेन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन. हम संस्कृत एजुकेशन के मॉड्यूल से स्टार्ट कर गए हैं और हम चाहते हैं कि भारत की सभी 22 भाषाओं में टीचर एजुकेशन के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम इसी तर्ज पे, इसी फॉर्मूले पे बने. और NCT विल मेक श्योर दैट ग्रेजुअली वी आर कमिंग with more programs on language education. ITAP in yoga education. तो ये 4-5-4+1 ITAP के साथ साथ जो आपने सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू आपको पता लगा कि we are reviving 1-year BEd and 2-year BEd. 1-year BEd and 2-year BEd are not synonym to each other. These are 2 different programs altogether. One is meant for a graduate, other is meant for a 4-year graduate or a master degree holder. 1 साल का BEd exclusively for 4-year graduates or for postgraduate students. Policy proposed that we should have inclusive models of education. NCT ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और सभी स्टूडेंट्स के लिए वो किसी भी स्टेज पर डिसाइड करते हैं कि वो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया. आफ्टर क्लास 12 यू कैन कम ITAP एंड बिकम अ स्कूल टीचर. आफ्टर 3-year ग्रेजुएशन यू कैन कम एंड डू 2-year BEd एंड बिकम अ स्कूल टीचर. आफ्टर मास्टर डिग्री यू कैन कम फॉर 1-year BEd एंड बिकम अ स्कूल टीचर. अगर कहीं इस तरह की घबराहट है या ये प्रोग्राम रिवाइव क्यों हो रहा है, इस पे सवाल है, तो एज एन एकेडमिशियन आई एम ओपन टू डिस्कशंस एंड सजेशंस. NEP ने जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क दिया उसमें 6.5 लेवल ऑफ जर्नी ऑफ अ लर्नर के इक्विवेलेंट है 1-year BEd प्रोग्राम. तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, parity, quality of these programs have already been given utmost care by NCT. MEd प्रोग्राम 7 पॉइंट पे आता है और 7 पॉइंट पे PhD भी आता है. तो 1-year MEd is coming back as a regular program of teacher education, master degree. 2-year MEd नहीं रहेगा, तो उसमें डिस्कशन नहीं है, एक ही प्रोग्राम होगा MEd फुल टाइम 1 year. या दूसरा प्रोग्राम जो CI का एक पॉपुलर प्रोग्राम था, गांधी आश्रम अहमदाबाद का एक पॉपुलर प्रोग्राम था, पार्ट टाइम MEd. बहुत सारे टीचर्स की रिक्वेस्ट NCT के पास आती है कि UPSC 2 पॉइंट्स देता है स्कूल प्रिंसिपल बनने में अगर आप MEd क्वालिफाइड हैं, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं है कि हम MEd कैसे करें. तो उनकी डिमांड को और इस प्रोग्राम के एक्सपेरिमेंट को जो CI ने ऑलमोस्ट 60 साल तक किया, आई माई सेल्फ इज अ प्राउड प्रोडक्ट ऑफ MEd पार्ट टाइम फ्रॉम CI. तो पार्ट टाइम प्रोग्राम इन मोड ऑफ एनुअल मोड फॉर 2 years विल बी बैक. तो ये फोरफ्रंट पे आने वाले प्रोग्राम्स हैं, 9 टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स. आई विल जस्ट टेक 2 more minutes. वे फॉरवर्ड टीचर एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं, आई वुड अप्रिशिएट कौशल किशोर जी अगर आने वाले दिनों में इन 4 पॉइंट्स के ऊपर भी एक सेशन में बात करें. स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू टीचर एजुकेशन, एनहेंसिंग स्कूल यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप टू बी इफेक्टिव इन द डोमेन ऑफ स्कूल एजुकेशन, capacity building for teacher educators as well as school education teachers. Leveraging technology in teacher education is another important aspect. Next. And this is my second last slide, which is proposing role of teacher education in the mission Viksit Bharat 2047. Nation building through quality education. अगर हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे तो बहुत सारे रास्ते हैं. इकोनॉमी, सोसाइटी एज वेल एज एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर. मुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ आर 2 इंपॉर्टेंट कोर वैल्यूज, कोर फैक्टर्स.
अगर हम नेशन बिल्डिंग क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू जाते हैं, शेपिंग फ्यूचर रेडी एजुकेटर्स फॉर 21st सेंचुरी विद देयर स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज, प्रमोशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। पॉलिसी ने कहा कि हमारी जड़ें, हमारे पांव जमीन पर भारतीयता में, भारतीय मूल्यों में होने चाहिए और हमारा मस्तिष्क खुला, वैश्विक, ग्लोबल, यूनिवर्सल होना चाहिए। तो उस सजेशन को कंसीडर करते हुए IKS एज प्रपोज्ड। फाउंडेशनल लिटरेसी की बात आप काफी करते हैं, क्वालिटी एंड इंक्लूजन की बात पॉलिसी करती है, एंड नेशनल ग्रोथ एंड इनोवेशन हम लाना चाहते हैं। अगर महात्मा गांधी की इस पॉइंट को आज के दिन हम याद करें कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। द प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर सक्सेस। इससे नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट या पीछे जा गए हैं, हाँ, इससे नेक्स्ट। द इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, दो रूटेड इन सिंप्लिसिटी, nurtured intellectual, moral and practical excellence, revealing that true education is not confined to grandeur but thrives in its ability to uplift society and sustain cultural value. ये important quote द ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी की किताब से मैंने लिया, और ये बुक अपने आप में इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना रिच, सेल्फ सस्टेन हुआ करता था उसको समझने में बहुत मदद करती है। अगर आप इसको भी अपने डिस्कशंस में लाएंगे और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रूट्स और उसका रिच कल्चर समझेंगे तो काफी मदद मिलेगी। प्रीवियस वन। Now, last formality, on behalf of NCT, I extend heartfelt congratulations to Jamia Millia Islamia for organizing this 2 days international conference on foregrounding teacher education in the light of NDP 2020. I wish all the participants enriching discussions and meaningful collaborations. Together, let us work towards the progressive, inclusive, and globally competitive teacher education system that shapes the future of education of India and beyond. Thank you for inviting me and giving me this opportunity. Thank you.